ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا بڑے ٹرینڈ پہ جا رہا ہے، انڈیا کے اندر کرونا وائرس ہو رہا ہے اور انڈیا میں بہت سارے لوگ مر رہے ہیں. ایک ڈاکٹر سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہاں جی انڈیا کے اندر جو ہے نا یہ حالت ہے کہ شمشان گھاٹوں میں جلانے کے لیے بھی جگہ کم پڑ گئی ہے. مجھے نہیں پتہ اس میں سچائی کتنی ہے اور جھوٹ کتنا ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹویٹر پہ میں نے ٹرینڈ خود دیکھا ہے کہ انڈیا نیڈز ہیلپ، انڈیا نیڈ آکسیجن، اور اس ٹائپ کے ٹرینڈ کے حساب سے ٹویٹر پہ بہت زیادہ جا رہا ہے. میرا ایک سوال یہاں پر ہے، پورے ہندوستان کے تمام ہندو مذہبی پیشوار اور روحانی جتنے بھی تھے، پنڈت پادری جو بھی کچھ ہیں، کیا سب کی روحانی اور معجزاتی اور فلانی طاقتیں ختم ہو گئیں؟ کدھر چلے گئے ہندوستان کے جتنے اتنے کروڑوں جو بھگوان بنائے ہوئے تھے اللہ کے مقابلے پر؟ کیوں نہیں بچا رہے اب وہ؟ کدھر ہیں تمام ہندوؤں کے باطل میں تو باطل کہتا ہوں، باطل خدا کدھر ہے؟ ایک کرونا نہیں سنبھالا جا رہا ہے کہ سارے سے مل کے؟ کہاں ہو؟ آؤ نا سارے کے سارے بڑے عوام میں بیٹھ کے منجن بیچتے تھے یہ اپنا فلاں بھگوان رام کرشنا جے شری رام فلاں رام، کدھر ہے سب کے سب؟ اللہ نے ایک کرونا بھیجا تو مقابلہ نہیں کر پا رہے. اب روکو نا، روک کے کیوں نہیں دکھا رہے؟ ختم کر کے دکھاؤ کرونا کو پورے انڈیا سے، کیوں نہیں کر پا رہے؟ حکومتوں کو آفر دو بھائی، جو بڑے بڑے مشہور ہو دو نا، اپنی حکومتوں کو آفر دو. اگر تم یہ کہو کہ پاکستان کے اندر سے خون ختم نہیں ہوا تو پاکستان کی حکومت نے ابھی تک مجھ سے ہیلپ نہیں لی ہے. پاکستانی حکومت ابھی تک دوائیوں اور ویکسین وغیرہ کے اوپر کام کر رہی ہے، ان سے مدد لے رہی ہے، چائنا یا جو بھی کچھ ہیں تو وہ ان کا مسئلہ ہے. لیکن میں اپنے طور پر پاکستانی حکومت کے نام پیغامات، ویڈیو پیغامات جاری کر چکا ہوں 2020 میں بھی، 2021 میں بھی اللہ کے فضل سے، اور پورے پاکستان سے کرونا وائرس ختم کروانے کے لیے اب بھی تیار ہوں اللہ کے فضل سے. اگر مجھ سے گورنمنٹ ہیلپ لینا چاہے اور میری سروس استعمال کرنا چاہے، وائرلیسلی گھر بیٹھے ہی لیجنڈری ٹیم کے ساتھ مل کے پورے پاکستان سے کرونا وائرس اللہ کے حکم سے، اللہ کی طاقت سے ختم ہو سکتا ہے. کیسے؟ کیونکہ اللہ ختم کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ لیجنڈری فریلانسر سے کانٹیکٹ کریں گے، ڈیل کریں گے. کیسے؟ کون ختم کروا دے گا؟ ارے بھائی لیجنڈری ٹیم ہے اس کے ساتھ، پوری ہو جائے گا اللہ کے حکم سے ختم. کرونا کون سی بڑی بات ہے؟ وہ زمین و آسمانوں کا شہنشاہ ہے اللہ واحد القہار. اپنی بات کرو. پاکستان سے تو میں موجود ہوں. اگر انڈیا کو مدد چاہیے تو چلو اس پہ بھی سن لو. اگر انڈیا سے کرونا وائرس ختم کروانا ہے، پورے انڈیا سے، کتنا بڑا ہوتا ہے انڈیا پتہ ہے؟ کتنا بڑا انڈیا؟ پورے انڈیا سے اگر کرونا وائرس ختم کروانا ہے کہ حملے ختم ہو جائیں کرونا کے اور لاشیں نہ گریں، تو لیجنڈری فری لانسر سے کانٹیکٹ کر لینا اللہ کے فضل سے، لیکن بزنس کے طور پہ، بزنس سروس. ٹھیک ہے؟ یہ چینل محمد ذیشان ارشد صرف دین اسلام کے اللہ کے وجود پر اور اس کی سچائی پر ہے، اس کے ناقابل شکست دلائل اور ثبوتوں پر ہے، اور مائنڈ سیٹ کھولنے کے حوالے سے تاکہ باطل خداؤں کے نام پر جو مذہبی پیشواؤں نے بیوقوف بنا کے رکھا ہوا دنیا کی اپنی غیر مسلم عوام کو، ان کو پتہ لگے ان کے ساتھ کتنا بڑا فراڈ ہو رہا ہے، جھوٹ ہو رہا تھا، ڈرامہ ہو رہا تھا آج تک 21ویں صدی تک. کرونا سے پہلے تک کرونا کیسے آ گیا اچانک دنیا کے اندر، اور کرونا کے فوراً تھوڑے ہی عرصے بعد ایک دم لیجنڈ کیسے آ گیا سامنے اللہ کے حکم سے؟ کیونکہ اللہ کے حکم سے نا، اللہ نے تیار کیا کسی کو. کس کو؟ بات کر رہا ہے کیمرے پہ، آن ویڈیو بات کر رہا ہے، کیمرے پہ بات کر رہا ہے، چینل چلا رہا ہے، چیلنجز دے چکا ہے. 2020 میں دیکھنا کرونا وائرس کے حوالے سے اسٹارٹنگ کے ساتھ میں کیا ہوا تھا، کون آیا تھا پبلک کے سامنے، کس نے چیلنجز کیے تھے دنیا بھر کے غیر مسلم مذہبی پیشواؤں کو، روحانی مذہبی سائنسیفک جو بھی کچھ ہیں. خصوصی طور پہ تو مذہب کے نام پہ جو خداؤں کی طاقتوں کے دعوے کرتے ہیں اپنے، وہ کدھر ہیں؟ اب تک آئے نہیں کوئی. کہاں ہیں تمام ہندوستان کے بڑے بڑے مذہبی پیشوا ہندوؤں کے؟ کدھر ہے پنڈت پادری؟ مقابلہ کرنے کا دم نہیں ہے کیا کسی کے اندر؟ کدھر ہیں؟ کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ بھائی مجھے چھوڑو میں کون ہوں، کتنا مشہور ہوں نہیں ہوں، لیکن باقی ہندوستان کے تو بہت سارے مشہور ہیں. وہ اپنی حکومتوں کو آفر دے کے ختم کیوں نہیں کر سکے؟ جن کی حکومتوں سے کانٹیکٹ ہے انڈیا کی، جن کی پرائم منسٹر جناب نریندر مودی صاحب سے کانٹیکٹ ہیں، کرائے نا ختم. نریندر مودی صاحب آپ کو بھی میسیج دے رہا ہوں میں، اگر آپ کو اپنے پورے انڈیا سے کرونا ختم کروانا ہے نا تو کانٹیکٹ کر لینا مجھ سے، لیکن لیجنڈری فری لانسر بزنس سروس، اس کے لیے میں لیجنڈری فری لانسر ہوں اللہ کے فضل سے. میرا بزنس ہے لیجنڈری فری لانسر. آ جائیں، کانٹیکٹ کریں، ڈیل کریں.
करते हैं डील, पूरे इंडिया से कोरोना वायरस ख़त्म कराने में मैं मदद करता हूँ, फिर आपकी अल्लाह की ताकत और अल्लाह के हुक्म से। बसूरत दीगर आपके पास बड़े बड़े मजहबी पेशवा और ये सब कुछ जो है ना, ये असल में सदियों से जो जिन नामों को खुदा बना के रखा हुआ था, कृष्णा और राम और सीता और हनुमान और विष्णु, ये सब कोई खुदा नहीं थे। कोरोना ने आके सबकी औकात और भांडा फोड़ दिया अल्लाह के हुक्म से। अब चूँकि कोई कर नहीं सकता कोरोना वायरस को दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म, कोई भी गैर मुस्लिम, और मुसलमानों के अंदर से मौजूद हूँ मैं अल्लाह के बदल से, अगर ख़त्म करवाना हो तो कर ले रब्ता, और इस चक्रों में ना पड़ें कि ये कैसे मुमकिन है। मुमकिन है तो सामने बात कर रहा है ना एक शख्स। कौन है ये शख्स? लेजेंड ऑफ अल्लाह, नाम याद रखना। अगर हिंदुस्तान के तमाम मजहबी पेशवा फेल हो जाए ना गैर मुस्लिमों के, तो फिर मदद लेने आ जाना। वैसे तो कोई मदद कर नहीं सकता गैर मुस्लिमों को, कोई मजहबी पेशवा, हिंदुओं का, पूरे हिंदुस्तान के तमाम हिंदू मजहबी रूहानी पेशवा मिलकर इकट्ठे हो जाएं इस बात पर कि कोरोना को हमेशा के लिए रोक लें और ख़त्म कर लें इंडिया से। दुनिया की बात नहीं कर रहा, मेरी ऑफ़र तो दुनिया वालों के लिए भी बहुत है। मैं तो सिर्फ इंडिया के हिंदुस्तानों को बता रहा हूँ कि तुम सारे मिल जाओ तो कोरोना वायरस पूरे हिंदुस्तान से हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते, रोक भी नहीं सकते इसको, क्योंकि इसको कंट्रोल करने वाला, इसको चलाने वाला, इसको इंक्रीज़ करने वाला, डिक्रीज़ करने वाला, इसके रूप बदलने वाला, वो कोरोना का क्रिएटर है और उसका नाम है अल्लाह। वही अल्लाह जिसके नाम के डंके इस कायनात में नेचर की मखलूक बजा चुकी उसके हुक्म से, दरिंद परिंद चरिंद माँ के पेट से निकले हुए बच्चे, इवन हिंदू जिसको अपनी माता पिता कहते हैं, गायें, बहुत सारी गायें, देख लेना इसी चैनल पे मोहम्मद ज़ीशान अरशद पे, गायें भी अल्लाह ही का नाम लेती है, गायें भी मुसलमान है। इतनी चीज़ें सामने रख तो दी, अब तो आंखें खोलो और होश के नाखून लो। और अगर कोई हिंदू पेशवा अभी भी ये समझता है कि वो सच्चाई पर है, तो आ जाओ पूरे हिंदुस्तान के तमाम हिंदू पेशवा मिलकर, बग़ैर मास्क पहने, बग़ैर साइंटिफिक आलात, बग़ैर वैक्सीन, बग़ैर कुछ इस्तेमाल किए, चलो ज़रा मेरे साथ कोरोना वायरस के वार्ड में, कैमरा लगा के मीडिया के सामने, आवाम के सामने, है कोई हिंदू पेशवा, बड़े बड़े मशहूर आ जाओ, सारे मिलकर, सारे मिल के आ जाओ। इस्लाम से अकेला आऊँगा अल्लाह के फजल से, लेजेंड अकेला आएगा, क्योंकि शेर शेर होता है और मैं तो अल्लाह का नाकाबिल शिकस्त रूहानी शेर हूँ अल्लाह के फजल से। आ जाओ पूरे हिंदुस्तान के पेशवा मजहबी गैर मुस्लिम, आओ टक्कर लो मुझसे, चलो कोरोना के अंदर। अगर कोरोना से ज़्यादा डर लग रहा है तो आग में आ जाओ, आग में जाने का मुकाबला कर लें। हाँ, भड़कती हुई आग में, जलती हुई आग में, उसका भी खालिक अल्लाह है, उसको उसके ज़रिए जलाने वाला भी अल्लाह है। तुम्हारा कोई हिंदुओं का कोई मजहबी माबूद नहीं है इसके पीछे, आग को कंट्रोल करने वाला भी अल्लाह है, समझे। पानी, आग, मिट्टी, नेचर, हवा, दरिंद परिंद चरिंद, सब का खालिक अल्लाह है। हिंदुओं का कोई माबूद नहीं कंट्रोल करता, क्योंकि वो सब खुदा है ही नहीं, उनका इस कायनात पे कोई इख्तियार नहीं है, नेचर पे कोई कंट्रोल नहीं है। बात साफ़ है, या तो मदद लो या फिर कोरोना के हाथों जो हो रहा है भुगतो। और तुमसे नहीं हो सकता ना, तो भाई एक काम करो, अपनी आवाम को बोलो लेजेंडरी फ्रीलांसर से कांटेक्ट कर ले, मुस्लिम मैन ऑफ इस्लाम से, वही मदद कर सकता है अल्लाह के बदल से, वायरलेसली घर बैठे बैठे। मरीज़ चाहे तुम्हारे अस्पतालों में पड़ा हो, चाहे तुम्हारी सड़कों पे पड़ा हो, चाहे तुम्हारे घरों में पड़ा हो, चाहे इंडिया के अंदर कहीं पर भी मौजूद हो मरीज़। वैसे तो दुनिया भर के लिए ग्लोबल सर्विस है वायरलेस, वायरलेस का मतलब भी वायरलेस होता है, इतनी तो कॉमन सेंस यूज़ करते हो ना, अकल इस्तेमाल कर रहे हो, गूगल यूज़ कर रहे हो, ऊबर सर्विसेज यूज़ करते हो, पता नहीं क्या क्या यूज़ कर लेते हो आजकल। इतना तो पता है ना वायरलेस का मतलब क्या है, वो भी समझाना पड़ेगा मुझे। वायरलेस का मतलब होता है ग्लोबल एक्सेस, घर बैठे बैठे ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी कोरोना का कोई मरीज़ हो ना और मसला हो रहा है, तो आ जाना कांटेक्ट करने ना लेजेंडरी फ्रीलांसर से, घर बैठे बैठे ही अल्लाह के हुक्म से उसका कोरोना वायरस 7 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की ताकत से। कोरोना वायरस, कोरोना का ही नाम ले रहा हूँ, कोरोना ही बता रहा हूँ। वैसे तो तुम्हारे बहुत से गैर मुस्लिमों को बड़ी आग लगती है कोरोना के हवाले से जब मैं बात करता हूँ, है कि इसके अकाउंट ख़त्म करो, ये बात क्यों कर रहा है, ये WHO की बातें करते हैं, क्यों? क्योंकि तुम गैर मुस्लिमों के पास तो कोई है नहीं ना ये ताकत, तुम्हें आग लगी हुई है, ये मुस्लिम के पास कहाँ से आ गए? अरे भाई, क्योंकि तुम लोग बातिल खुदाओं के पैरोकार हो, मुस्लिम मैन अल्लाह का पैरोकार है, अल्लाह इस कायनात का सच्चा खुदा खालिक है, तुम लोग झूठे खुदाओं के पैरोकार हो। तुम लोगों ने किताबों के नाम पे धंधे बना के रखे हुए थे, तुम्हारे मजहबी पेशवाओं ने झूठ का और फ़लसफ़े का ड्रामा मचाया हुआ था। कोरोना ने आके दिखा दी सबकी औकात, सारे गैर मुस्लिमों के मजहबी पेशवाओं को फेल करके दिखा दिया उसने।
क्यों नहीं रोक सके तुम लोग? 1 साल होने वाला है, हो मेरे ख्याल से तो 1 साल हो भी गया है शायद कोरोना को। क्यों नहीं रोक सके कोरोना? क्यों लाखों से ज़्यादा लाशें उठा दी कोरोना ने? अभी समझ नहीं आया ना? खेलते जाओ कोरोना का गेम, पता लगेगा। नहीं रोक सकते। तुम लोग दुनिया के तमाम गैर मुस्लिम मिलकर इकट्ठे हो जाओ, नहीं रोक सकते कोरोना वायरस। ये अल्लाह की ताकत से काम कर रहा है, अल्लाह के हुक्म से। बहुत तुम लोगों ने ड्रामा मचाया है ना मुसलमानों के ख़िलाफ़, बहुत तुम लोगों ने अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ड्रामा किया है, बहुत मुसलमानों को मारा है क्योंकि वो अल्लाह का नाम लेते थे, क्योंकि अल्लाह को पुकारते थे। क्या किया तुम लोगों ने कश्मीर के अंदर? क्या किया तुमने दीगर जगहों पे मुसलमानों के साथ, मुस्लिम ममालिक के साथ? तुम लोग ये करते थे, अब रोक रहे हो कोरोना को, रोक के दिखाओ। रह गए मुसलमानों के साथ कोरोना अगर कुछ कर रहा है, तुम सोचोगे शायद कि वो मुसलमान, तो मुसलमानों के भी जो बहुत सारे मुसलमानों के जो करतूत हैं वो मुसलमान जानते हैं, तो उनके अंदर भी जिनको अल्लाह ने सबक सिखाना है वो कोरोना से सिखा देगा, वो सिखा रहा है, उसको इतने को मसला नहीं है। तुम अपनी खैर मनाओ, तुम्हारे भगवान किधर है? तुम्हारे जिनको तुमने खुदा बनाया हुआ था, आज कहाँ है वो? किसकी बादशाहत चल रही है? किसकी सल्तनत है ज़मीन व आसमान पे? अल्लाह की है। अल्लाह कंट्रोल कर रहा है कोरोना को। अब रोक के दिखाओ अपने भगवानों की, माबूदों की ताकतों के साथ आओ मुकाबले पर, रोक के दिखाओ कोरोना को। या तो कोरोना रोक लो या कोरोना में मेरे साथ जाके मुकाबला करके दिखा दो, या कोरोना को दुनिया से ख़त्म करा के दिखाना है तो छोड़ो, अपने इंडिया से ही ख़त्म करा के दिखाओ, सारे मजहबी पेशवा मिलकर। और इस्लाम से अकेला लेजेंड ये ऑफ़र दे रहा है और तुम लोगों को बता रहा है कि कोरोना ख़त्म करवाना है तो आ जाना और रब्ता कर लेना, फिर देख लेना कोरोना के साथ होता क्या अल्लाह के हुक्म से। ये है इस्लाम की ताकत, इस्लाम की सच्चाई, अल्लाह का वजूद और अल्लाह के होने पर प्रैक्टिकल सबूत के उसके लेजेंड को कोरोना असर नहीं कर सकता, बेअसर है वो अल्लाह की दी हुई ताकत से। तुम्हारे पास नहीं है ये ताकत है, इसलिए हर दरमिया छोड़ दो, अकल को इस्तेमाल करो, या तो ख़त्म करो या मदद लो। अपनी गैर मुस्लिम आवाम को अब बता दो कि सच्चा खुदा अल्लाह है, लाखों और करोड़ों के मजमे को बेवकूफ़ ना बनाओ बातिल खुदाओं के नाम पर। तुम्हें बता रहा हूँ मैं, तुम्हारे जितने भी बड़े बड़े मजहबी पेशवा हैं वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं नाकाबिल शिकस्त मुस्लिम मैन ऑफ इस्लाम हूँ अल्लाह का, समझे? तुम्हारे सारे मजहबी पेशवा समेत पूरी दुनिया के अंदर तमाम मजहबी पेशवा मिल जाएं, गैर मुस्लिम इकट्ठे हो जाएं इस बात पर कि वो मुझे शिकस्त दे दें खुदाओं के वजूद पर, तो वो नहीं दे सकते, आजिज़ हो जाएंगे बग़ैर मजहबी किताबों के। सिर्फ नेचर से शिकस्त दूंगा, नेचर की मखलूक़ात से, जिनका खालिक अल्लाह है, जिनका मालिक अल्लाह है, जिनको कंट्रोल अल्लाह कर रहा है। इतना काफ़ी नहीं है क्या कि 21वीं सदी में तुम्हारी दुनिया के तमाम गैर मुस्लिम मजहबी पेशवा बेबस हो मेरे सामने? काफ़ी नहीं है इतना? आगे खोलो अपनी और होश के नाखून लो, ताकि मरने के बाद जहन्नुम में जाने से बच सको हमेशा के लिए। कुफर पे खुद भी मर रहे हो, कुफर पे अपनी आवाम को भी मार रहे हो बेवकूफ़ बना बना कर। किताबों के नाम पे झूठे खुदाओं का वजूद बना के रखा हुआ था सदियों से। अब भुगतो कोरोना वायरस को।